professional colleagues, and today's our dynamic speaker, CA Achal Kapoorji from Amritsar. As you all know, that today's topic is in-depth analysis of Form GSTR 9 and 9C with case studies and the graphical representation. Today's we have the speaker CA Achal Kapoorji. She is a national speaker and authority on the subject of GST. She is having a decade experience in the field of indirect tax, including GST. Before we welcome our today's speaker, CA Achal Agrawalji, I request our new member, CA Bhavna Radheshwar ji, to give a brief introduction of CA Achal Kapoorji. Thank you so much, Jitendra sir. Good morning, one and all. And I am CA Bhavna Radheshwar, and today privileged to introduce our today's speaker, CA Achal Kapoor. CA Achal Kapoor is a fellow member of ICAI since January 2009 and a law graduate. She pursued graduation in commerce from Guru Nanak Dev University, Amritsar, where she has been a gold medalist for her excellent academic performance. She attained third rank all over India in CAPE 1 and second rank in Northern India in CAPE 1, and also placed in merit list of the university in graduation. As an additional qualification, she has also completed forensic audit and fraud detection course offered by ICAI. She has also been a merit holder in Bachelor's of Law completed in 2021. Apart from having splendid academic background, she has been in practice for over 10 years in the field of indirect taxes, as well as she has acquainted in the field of GST, including departmental and appellate work. She is a national speaker on GST and has deliberated in around 500 plus seminars, webinars across India to members and industry, with the privilege of virtually addressing August gathering of 2,000 professionals. She is an approved faculty at National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. She has also done several certified GST courses, including GST course offered by ICAI. She has been a faculty to various certified courses on GST. She is an approved faculty of ICAI. She has the privilege of contribution of various ICAI publications from time to time. Ma'am, we are really privileged, and with your immense knowledge, please enrich our today's audience with all your enlightenments. Thank you so much, Bhavna ji, for reading the profile in such a nice way. And definitely, I will try my level best that the members should be benefited from today's deliberation. So, Jitendra ji, with your due permission, can I start it? Yes, ma'am. All right. So, as always, I am so thankful to Andheri Yoshiwara Study Circle for giving me this opportunity to interact with the members. Jitendra bhai, the convener Utkarsh ji, and the coordinator Amish ji, as always. He has been so kind in making all the arrangements. So great to be on this platform, and I hope to all the lovely participants, the audience who have come this early morning for the purpose of learning, right? And I would try my level best. We will be enriching ourselves, and whatever your issues and queries will be there in GSTR 9.9C, I will try to take up the same. So should we begin? And you all know, if you don't know, let me tell you, you have to be very, very active in the chat box. Otherwise, I will stop the deliberation there and then. So can I see in the chat box, are you all ready? And let me share the screen also, then I will open the chat box so that, oh great. So Amish ji is fast to send the message. Yes, of course. So lots of energy from the organizer side. What about others? Now let me close it and let me open the chat box. So yeah, so many messages running, right? Rahul ji, Ajit ji, Shruti ji. See, I can at least know your names through this. Let me make it a slideshow too. All right, great. So friends, you all have filed the GSTR 9.9C for so many years now.
Right? Great, great, Sunil ji. Anand ji, I can see the energy flowing up on my screen too. All right, friends. So we have been filing it for 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, and now the 5th year, 21, 22. Form is almost same. So सबसे पहले हमारा question यही आता है कि just tell me what are the changes in 9 and 9C. Am I right? Yes, of course. So friends, अगर मैं 21, 22 की बात करूं, अच्छा, before I start the deliberation, I want to see answers from all of you in the chat box that according to you, which is the base document for filing GSTR 9 return? What is the base document for filing GSTR 9 return? Okay, Vaibhavji saying 3B. Okay, anybody else? Rest say none or they say all. Amish ji saying books. Anand ji saying GSTR 2B. Okay, 2B, Anand ji. Oh my God. Rahul ji saying 3B and 2A. 3B and 2A, okay. 3B and books. See, all of you have given, and friends, doesn't matter whether our answer is correct, matching. I will not say correct or incorrect. I will say matching with the others or not matching, because you can have your own right perspective too. But at least you should answer. Huh? We are here for mutual learning. User ID password. Achha, yeah, I think so. Something else. 3B, 1. Achha, Ajit ji कहते सब लूंगा. 3BB, 1B, books B, 2AB. Sir, 3B और 1 में अगर battle हो गया, तो कैसे दोनों को लेंगे? All. Okay, Anwar ji has also mentioned all. Friends, let me tell you one thing. It is none but the GST law and the GST provisions, which will be a guiding factor. अब देखो आप सबने ऐसे answers दिए मुझे. From where you will be picking up the figures. Somebody saying book, somebody saying 1, 3B, 2A, somebody saying everything we will consider. If you talk about GSTR 3B and 1, my dear friends, let me tell you, GSTR 9 is tax-driven return. Because it is a tax-driven return, so 3B wins over GSTR 1. Why I'm saying wins over? I'm not saying ignore GSTR 1. No, not at all. But what you are supposed to do, if there is contradiction between 3B and 1, then GSTR 3B will prevail. Secondly, if you talk about books, yes, we will be considering the books. But other than that, is the document, is the statement turnover as per section 2, clause 6. So it is ultimately the GST law. अब जिन लोगों ने मुझे books answer दिया और all answer दिया, for all friends, let me tell you, you cannot consider all, क्योंकि हमने भी तो GSTR 1 और 3 भी बहुत अच्छे से भरी होती है. किसी में कोई figure छूट जाती है, किसी में adjustment next time की होती है. So in case of contradiction, 3B will prevail. In case of books and GSTR, the GSTR 3B, you have to consider the books, but make the necessary adjustment. Can you tell me what can be the necessary adjustments? What can be the necessary adjustments? I give you examples. Schedule 1 supplies, which are not there in the books of accounts. Second, advance of services. Advance of services is not an income in GST in books, but advance of services has to be added. Sale of fixed assets. Sir, आपके P&L में नहीं दिखेगी, but you are supposed to consider it. So these are the various adjustments which, as per GST law, we are supposed to make. Now, coming to next step, we are on the fag end now, because we are left with just last 20-25 odd days to file our GSTR 9 and 9C. So how you are going to start it? First of all, you will decide, okay, just tell me whether the limits of 2 crore and 5 crore are applicable for GSTR 9, 9C for current year. Quick answer in the chat box. And let me tell you, the first of all, you will be starting with making a list. As you all rightly said, yes, 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 yes. तो सबसे पहले तो आप list बनाएंगे ना, कौन से ऐसे assessees से जो 2 crores, right अजीत जी, 2 crore and 5 crore के limit को cross कर रहे हैं. So अगर आप ये list बनाते हैं, please be careful in the first step, because the first question I asked you, how will you calculate the turnover, is after making the specific adjustment. For example, Amish ji has a client with a turnover of 1 crore 80 lakhs. Right now, for that,
assessee whether GSTR 9 has to be filed or not. अमीश जी ने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया, ऐसे करो, एक लिस्ट बना के ले आओ 3B में कितनी सेल्स है, और उसमें सेल्स थी 1 करोड़ 80 लाख। बट जब 3B फाइल की थी, एक कैपिटल अकाउंट में कमीशन इनकम आई हुई थी, वो पर्सन ने कैपिटल अकाउंट में दिखाई थी, प्रोप्राइटर था। सेकेंडली, अगर मैं बोलूं, जस्ट 1 सेकेंड, phone is ringing, just give me a while. So sorry. Okay, friends. So if I try say you about from where we have to consider it, सबसे पहले जो 1 करोड़ 80 lakhs है, you must consider this 1 crore 80 lakhs that what has been उस पार्टी की जो कमीशन थी या जो रेंटल इनकम्स थी, that were shown in the capital account, but that was ignored. अब अमीश जी ने जब वो देखी कि स्टाफ ने तो 1 करोड़ 80 lakhs डाल दिया, but there was a commission of 25 lakhs which was there in the capital account, that also needs to be added. The person has sold a fixed assets worth 10 lakh rupees, that is also to be added. So these are the various adjustments which we are supposed to do in, first of all, even to check the limits. Friends, जिसमें तो ज़्यादा difference होता है, it's okay. But whenever I make the list, I always consider the books, and in the books, not only the sale that is shown in the P&L account. Please make sure if it is a proprietorship, whatever incomes are there in the capital account, उसमें भी check कर लीजिएगा. Sir, commercial rentings, the party shows that in the in capital account. Commissions which come in their personal saving accounts, they don't consider it. Add all those things. Consider the depreciation chart also. So जब आप books का figure लेते हैं, kindly make a note under it in the Excel sheet that you have to consider the fixed asset chart, you have to consider the capital account and P&L account income. 1 column of books, 1 column of 3B, so that you don't miss कि 3B में कितना turnover गया हुआ है. And third is your on GSTR 1 you can take as a base. Then check that what has been the limit and everything. Now, friends, if I come back to what has been the limit and everything, in this case, if I talk about what figures are to be, from where we have to pick the figures, when once we decide the list, then we should move further. And while doing so, first of all, let me show you the next slide. One thing more, always get a bunch ready. Always. That what all to be taken, just I show you in the next slide. Okay, friends, yes, the turnover limit for GSTR 9 is absolutely same. I am not going verbatim. We will be directly focusing on what the content is. Now, you all know GSTR 9C is not to be certified by the chartered accountant. So it's a sigh of relief. You know, you filing bhi aap hi kar rahe hain, but still you are not supposed to sign it. So it just lower down your responsibility. Moving ahead, and one thing more, this, you know, it's applicable. Friends, let me tell you one thing. Don't miss GSTR 9 and 9C filings. इतने जो गवर्नमेंट ने वेवर्स दिए, लेट फी के वेवर्स दिए, आपको फाइलिंग अपॉर्चुनिटीज दी फ्रॉम द प्रीवियस फॉर द प्रीवियस रिटर्न्स, बट GSTR 9 की लेट फी का वेवर कभी नहीं आया. Yesterday also I got a call from some person and he was asking 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. All the 4-year returns have not been filed, whereas all those were applicable. So please make sure ना इसका waiver पहले कभी आया है, ना late fee में. So you have to be very, very particular, and the late fee is also high. We will discuss the late fee also. So whenever you prepare your list, you have to be extra cautious so that you don't miss it. Right? चलिए, 5 करोड़ का लिमिट ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू पहले से रूल 80 में सब्स्टिट्यूटेड है कि अब वो 5 करोड़ से ऊपर ही जाएगी. So this is the chart in front of you, exempted, mandatory, not mandatory. So you can see it is 2 crores above, and you can see GSTR 9 is above.
5 crore limit. Now, this is the chart. Friends, कौन सा कॉलम मैंडेटरी है और कौन सा कॉलम एग्जेम्प्टेड है, दैट इज मेड इन दिस चार्ट. और कौन सा कॉलम कौन से ईयर से जो है वो मैंडेटरी हुआ है, दैट आल्सो आई हैव मेंशन्ड अलोंग विद इट. From 2021-22, this is the change. So you can notice down the changes from here also. But let me come to the slide that what changes have been made. Here it is. सबसे पहला change is in column 4H and I and 4J and K. For B2B supplies, previously you had the option. Example, if I say आदित्य जी के क्लाइंट ने 100 रुपीज का टर्नओवर किया, 20 का क्रेडिट नोट दिया, you had the option of showing 80 net in the column 4B. However, now it is mandatory that 100 to be shown in column 4B and the net the credit note amount of 20 to be shown in the column 4H, I, J and K. The debit notes, the credit notes, the amendments to B2B invoices now from the year 21-22 are mandatory to be shown separately. अब आप उसको net करके नहीं दिखाए. First change clear? Now let's move on to the next one. Sir, पहले हम क्या करते थे? I hope you all are easy with the tables. Even if you are not, don't worry, we will be discussing the tables too. But those who know already and who have filed so many returns, let me quickly cover up that what has been the changes. So just this, previously B2B where supplies were shown net, was optional to be shown net or gross, but now it is mandatory to be shown gross, and the credit note amendment to those has to be shown net. Second is 5D, 5E, 5F column, exempted, nil rated, non-GST supplies. Previously, they used to say that you can file that in any column. Now this says, okay, you can mix exempted and nil rated, but give us the non-GST supply separately. Non-GST supply means the supply which is not leviable to tax. 5 petroleum products, your alcoholic liquor for human consumption. There are certain things which are not supply even, like your interest, bank account interest. Okay, let me ask you, is interest taxable in GST? Quick answers in the chat box. Is interest taxable in GST? Yes or no? No. Okay. No. Exempt. Sales. Vaibhav ji has mentioned sales interest taxable. All right. I keep your point in abeyance for some time. On debtors, it is taxable. Friends, your first question should have been, what type of interest is it? There are 3 types of interest. One from the FDRs or certain savings. Second is from the debtors. Third is from the unsecured loans. Only the interest from debtors is taxable. Interest, bank interest and the FDR interest are not supplies. Please, they are 3 तरह के मैंने बताया. First, the bank interest are not supplies. Please don't come up with the double AR of Dipesh Kumar. I know that, but although I don't want to say, but certain advanced rulings are adverse rulings. So yes, that is not a supply because not in the course or furtherance of business. Second, interest from the debtors, taxable as per section 15. Third, interest from the unsecured loans. Interest from the unsecured loans is also exempt supply, so not taxable. So 3 types of interests are there. But coming back, in this 5D, 5E, 5F, we just have to segregate the non-GST supplies. Exempt and nil rated, you can still mix up with. And the next change, which is a bit 6C and 6D. All right, friends, just tell me, RCM में self-invoicing करते हैं? Is self-invoicing mandatory for all types of RCM? Is self-invoicing mandatory for all types of RCM? Yes or no? कुछ तो लिख दो.
Answer is, acha, no. All right. No, no. Acha, which type? It is for which type required? I give you an example from unregistered person. Absolutely, Vaibhavji, you are decent. It means, let's take the example of two advocates. Two advocates. One advocate was getting good rental incomes. He was registered under GST, but जो उसकी professional receipt से income आती थी, that was covered under RCM. Second, another lawyer was not having any rental incomes, was having only professional incomes. He never got registered under GST and was rendering the services, professional services, covered under RCM, payable by another person. Now, there are two types of advocates, and your client has taken the services of both advocates, one which is registered, two which is unregistered. The client has to do self-invoicing for the second type, URD. Absolutely, CA Jaguji, URD. For this person, the self-invoicing has to be done by your client because this person is registered. He will give you an invoice under GST. Although covered by RCM, he will mention applicable reverse charge, yes. This person cannot issue you a valid GST document. So you are supposed to do the self-invoicing. And let me tell you, in majority of the cases, the clients have missed doing self-invoicing. Previously, ये दोनों advocates का figure club करके you could have shown in 6C together previously, but now in that case, now you have to club 6C and 6D together. So you have to report them separately. You cannot consolidate the figure. It means advocate 1 ka figure separately show karna padega, advocate 2 ka. Ultimately, the supplies which are coming from RD and URD have to be shown separately. RCM supplies even, right? And the last change regarding HSN wise summary. Friends, HSN wise summary of outward supplies is mandatory. Many people have this confusion कि okay, अब हम inward suppliers की summary कैसे लेके आए? It is not required. पहले दोनों optional थी. Now only outward supplies. These are only the changes. These are only the changes. That's it. अच्छा, one thing more. 6B input का column है. Input 3 चीजों से आता है. Inputs, capital goods and input services. My question to all of you is input, capital goods and input services. Do we need to show the 3 inputs separately in GSTR9 or clubbed in GSTR9? Quickly. Separately or jointly? Acha ji, CA Jaguji saying separately. Mr. Alpesh, I will come to it. Next. Bas, that's it. Friends, इससे पिछले से कैपिटल सेपरेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट अजीत जी. ये चेंज मैंने फ्रेंड्स इस लिस्ट में नहीं डाला है. और इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला है? क्योंकि ये इस साल का चेंज नहीं था. दिस वाज अ चेंज बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड सो ऑन से एप्लीकेबल था. एंड दैट वाज द चेंज. इनपुट, input services and capital goods. Capital goods is mandatory to be shown separately. Input and input services could have been clubbed. So this was a change which happened in the previous year, is now even applicable for the financial year 2021 and so on. So these were the changes, right? Chaliye. I think so, Dinesh ji, the membership numbers are not required. Is that so? The organizers not required, or do Yes, they need ma'am. to put? Yeah, Yes, not ma'am. required. Well, you know, I missed certain queries in between otherwise. Great, great, Amish ji, Aditya ji. Thank you so much. All right, let's move forward. And what about 9C now? Friends, 9C, everything is same. Everything is same except this column, 12A to 12D RICO. पिछले साल का कितना एडजस्टमेंट इस साल किया, इस साल का कौन सा एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर? Sometimes I really feel that if we leave the appellate part and we come to the compliance part of GST, that is a reconciliation.
That is a reconciliation, right? 12A to 12D, 12B and C used to be पिछले साल का कितना एडजस्टमेंट इस साल का कितना एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर किया. That was optional. Now that has been made mandatory. Still it was optional. We always used to fill it because उसके बिना properly matching होता ही नहीं था. Yes, some people have this query, क्या हमें expense headwise reconciliation देना है? Answer is no, नहीं देना है. That is still optional. So a big sigh of relief. Table number 14 is still optional. आपको expense headwise ITC reconciliation नहीं देना है. Only 12B and 12C का छोटा सा 9C में optional से mandatory किया है, but वो वैसे ही एक हम optional होने पे भी we used to fill the columns so that हम उसका carry over अच्छे से दिखा सके. Right? So many of you must have seen these slides before also. Am I right? Anyhow, because the form is same, the slides will remain the same, but we forget certain things certain times. Okay. Even, my dear friends, I will show you the slide later. Let me discuss the quick points on it first. My first question, and I need the quick answers, huh? Not the sleepy answers coming late to me. My first question is, if a number is surrendered during the year, आज आप देखिए, जब आप लिस्ट बनाएंगे आपको वो पर्सन और उसका जीएसटी नंबर नहीं दिखेगा. Please make sure, ask your staff कि कौन-कौन से numbers during the year surrender हुए to give you the list for the same. But above 2 crores, you are supposed to file GSTR 9. Above 5 crores, you are supposed to file GSTR 9C. All the returns for the financial year 21-22 must be filed. करंट की फाइल नहीं हुई does not matter. GSTR 9 पॉपअप करने के लिए पुरानी वाली सारी रिटर्न्स उस साल की फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज बटन पॉपअप नहीं करेगा. थर्ड पॉइंट, अब हम आते हैं मुंबई, पंजाब एंड दिल्ली. The concern has a turnover of 2.5 CR in Mumbai. Let's take it 7.5 CR in Punjab. Okay, 12.5 CR in Mumbai, 7.5 CR in Punjab, and 0 in Delhi. 0 in Delhi. Quick answer, how many GSTR 9 and 9C we are supposed to file? How many? Be literal, huh? Be literal. How many GSTR 9 and 9C are supposed to be filed? Audit all. Should I add a word to your answer? Should I add a word? 3 each. I asked the question, how many GSTR 9 and 9C are supposed to be filed? 3 GSTR 9 and 3 GSTR 9C. Yes. Alpesh ji, I got your intent of saying, so those all who have said 3, they means 3 each. 3 GSTR 9 and 3 GSTR 9C. So what is the intent? Don't miss the Delhi office. अभी हमने दिल्ली न्यू यूनिट सेटअप किया था, नहीं की सेल्स, वो मेरा हेड ऑफिस है, वहां से सेल्स होती नहीं है, we just procure the orders. But 0 sales होने के बावजूद you are supposed to file GSTR 9 and 9C for Delhi office also. Many a times हम nil returns को miss कर जाते हैं, which is not advisable and which is not as per the law. So aggregate turnover has to be checked pan wise. M, P and D. For all we are supposed to file GSTR 9 and 9C. All right, so let's have a look on the points. These are the points which we have already covered. अब तो आदत पड़ गई है, चाहे ट्रान 1 हो, चाहे कोई और 3B हो, rectification subsequently permitted नहीं है, and that leads to so many reconciliations. So even be careful while filing it. Even if your सर पहले क्या था, अगर आप किसी भी फिगर को 20% से अप डाउन करते हो ना, ज्यादा 20% से ज्यादा, जैसे 100 को 130 कर दिया, 130 को, अच्छा एक बात बताओ, GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स किस फॉर्म से आती है? GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स किस फॉर्म से आती हैं? क्विकली, किस फॉर्म से आती है माय डियर फ्रेंड्स? GSTR 3B and 2A. Okay, 3B, yes, GSTR 3B,
GSTR1 एंड GSTR2A से आती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. GSTR1 से जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आती है, बट हमारे बैटल में कौन जीता था मनीषा जी? GSTR1 या GSTR3B? अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो GSTR3B जीतेगी, राइट? व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर, फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड होके टर्नओवर की GSTR1 से आती है. कारण, अरे आपने बाइफिकेशन ही GSTR1 में दिया है, B2B, B2C, तो वो बेचारा 3B से कैसे उठाएगा? It picks the figure from GSTR1 only, and when it picks the figure from GSTR1 और आपकी GSTR3B और 1 मैच नहीं करती है, तो आप उस फिगर को चेंज करेंगे टू GSTR3B फिगर. जब आप उसको चेंज करेंगे तो फॉर्म रेड हो जाता है. घबराना मत, वो कोई इंडिकेशन नहीं कि आपका केस लगेगा. That is only an indicator to you that you have modified the figure by more than 20% up or down. So that is only an indication to recheck the figures. That's all. आप में 3B के अकॉर्डिंग ड्रिवन होंगी. Once done, cannot be refiled. Okay, my next question. अब वो अमीश जी का क्लाइंट याद है सबको, जिसने कमीशन दिखा रखी थी या रेंटल इनकम्स दिखा रखी थी इन द कैपिटल अकाउंट और उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरा था. वो जब क्लाइंट अमीश जी के पास आया तो अमीश जी आस्क्ड हिम कि you are supposed to pay the tax on this commission. My question to you is, client says I have the excess credit ledger balance. Should Amish ji say him, okay, you can use the credit ledger, or should Amish ji say him, cash, you have to pay in cash? Quick, can Aditya ji saying cash? All right, cash or credit ledger? Cash. Acha, Vaibhav ji saying credit can be utilized. Alpesh ji also saying. So 2 votes. Vaibhav ji, Alpesh ji, फटाफट से client का पता करते हैं जिन लोगों ने cash लिखा है. Right? Okay. So friends, what I want to mention here is those who mentioned cash, absolutely correct in terms of GSTR 9 instructions. अच्छा, सुनील जी ने पूरा मेंशन किया, बोलते कैश भी, वो भी विद इंटरेस्ट, दे आर सपोज्ड टू डू इट. व्हाट अबाउट क्रेडिट? अच्छा, जिन लोगों ने क्रेडिट लिखा है ना कि वी कैन गेट द क्रेडिट यूटिलाइज, माय क्वेश्चन टू देम इज, ओनली टू देम इज, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? क्विकली आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम. फ्रेंड्स, अब अमीश जी अपने क्लाइंट को बोलते कि भाई टैक्स पे कर दे कैश में, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में देखा कि कैश ही बोला था. तो एब्सोल्युटली करेक्ट जिन्होंने कैश मेंशन किया. क्लाइंट बोलता है क्या सर, मेरा इतना बैलेंस नीचे पड़ा है, आप क्या मेरा दिन खोटी कर रहे हैं, मैं तो नहीं पे करूंगा इतना पैसा. सर एक बात बताइए, यही क्लाइंट अगर 1 महीने पहले अमीश जी के पास आता और बोलता सर मेरी कमीशन छूट गई है, या अमीश जी ऑडिट में ढूंढ लेते, इनकम टैक्स ऑडिट में, कि कमीशन छूट गई है, जीएसटी उस पे नहीं हुआ, तो आप उनको कहते डीआरसी पे कर दीजिए 03 से, डीआरसी 03 से टैक्स पे कर दीजिए. क्या पूरे लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप डीआरसी 03 वॉलंटरी बेसिस पे कैश से पे करें और क्रेडिट से पे नहीं कर सकते? The answer is no. Answer is no. There is no such restriction that the voluntary tax in DRC 03 has to be paid in cash. It is only the instruction of form annual return जो says कि आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा. So what I want to say here, आपका क्लाइंट अगर कैश से नहीं और क्रेडिट से पे करना चाहता है और उसका क्रेडिट थ्रू आउट फ्लो कर रहा है, यू कैन यूटिलाइज द कैश. आप 73 सबसेक्शन 5 में जाके डीआरसी, मतलब जो पॉप डाउन विंडो, जो पॉप डाउन होती है जो विंडो, उसमें आप उसमें आप सिलेक्ट करिए ऑप्शन ऑफ नॉट एनुअल रिटर्न बट 73 सबसेक्शन 5 वॉलंटरी पेमेंट, and you can use the cash. पहले voluntary payment कर दीजिए, then you can file your GSTR 9. फिर तो annual return के टाइम पे नहीं ना किया, मैंने तो पहले ही कर दिया था voluntary payment के थ्रू, and there is no restriction in any of the legal provision which says you have to pay through the cash only. So I hope those who mention cash can utilize the credit also. Do you agree? Or anybody who said cash disagrees with me? Now coming towards the interest part. हाय अग्री डिसअग्री का कुछ तो दिखा दो मुझे, थंब अप और थंब डाउन.
Agreed. All right, CA Jaguji. Now coming towards interest part. And sir, trust me, there is no harm in utilizing the credit. Even आज हम जो डिपार्टमेंट के ऑडिट्स करा रहे हैं, we always say them, हमारा क्रेडिट पड़ा है, अब उसमें से जो आपने रिकवरी करनी है आप कर सकते हैं, वॉलंटरी पेमेंट 73(5) में कर सकते हैं, and even department is allowing the same without any litigation to the same. Now coming towards the interest part, answer that, अच्छा जीएसटी में इंटरेस्ट ग्रॉस पे है नेट पे? क्विकली, ग्रॉस और नेट? Gross or net? I knew it. Everybody is going to give me the answer net. Everybody is going to give me the answer net. My answer is both, gross as well as net. Friends, if you will read the proviso of section 50, before due date gross, राहुल जी ड्यू डेट से पहले कौन सा इंटरेस्ट लगता है? वो तो लगता ही नहीं है. Before due date gross कैसे? Friends, look, there is, आप लोगों ने, जिन लोगों ने नेट आंसर दिया, प्रोवाइजो को पूरा नहीं कंसिडर किया. प्रोवाइजो में 3 केसेस हैं और अब तो रूल भी क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने 2022 में, इतना अच्छा सा बना के प्रॉपर आपको रूल दिया है. 3 केसेस, हैव अ लुक. अगर आपका क्लाइंट जनवरी की रिटर्न लेट लेके आता है और आप उसको मार्च में फाइल करते हो, जैन की रिटर्न मार्च में फाइल की, इंटरेस्ट उसका 1 लाख का आउटपुट था, 80,000 क्रेडिट पड़ा हुआ था, इंटरेस्ट लगेगा 20,000 पे. यू ऑल आर राइट इन सेइंग नेट, ऑल आर राइट इन सेइंग नेट. लेकिन क्लाइंट ने केस नंबर 2, क्लाइंट ने जनवरी की रिटर्न फाइल कर दी, फरवरी में बोलता है सर मेरी जनवरी की टर्नओवर छूट गई है, जनवरी की टर्नओवर छूट गई है, फरवरी में दिखा दीजिए, अप्रैल में दिखा दीजिए, मई में दिखा दीजिए. सर नेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो व्हाट आई वांट टू से हियर, अगर उस मंथ की रिटर्न लेट होती है तो आपको नेट का बेनिफिट है. What the proviso says, it says supplies for that period must be shown in the return for the same period. जैन की रिटर्न मार्च में भरोगे, नेट का बेनिफिट मिलेगा 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 पे टैक्स. सेकेंड, जैन की रिटर्न भर दी और उसका टैक्स किसी, उसकी आउटवर्ड सप्लाईज किसी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में दिखा रहे हो, आपको पूरे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसीलिए आप आज जब डिपार्टमेंट से ऑडिट करवा रहे हो और आज DRC 03 पे कर रहे हो, आज आप उसका टैक्स कर रहे हो, तो वो कहते हैं आप क्रेडिट यूज करना चाहते हो कर लीजिए, डजंट मैटर, बट इंटरेस्ट तो हम पूरे पीरियड का लेंगे. सप्लाईज ऑफ 1 पीरियड शोन इन सब्सिक्वेंट पीरियड, इट इज ऑन ग्रॉस बेसिस. थर्ड, अगर आपको 73-74 का नोटिस आ चुका है, क्लाइंट कितनी बार बोलता है सर जब नोटिस आएगा तब देखेंगे. जब 73-74 का नोटिस आता है उसके बाद आपको नेट का बेनिफिट नहीं है. यू हैव टू पे ऑन ग्रॉस अमाउंट. इफ GST पेड, आदित्य माहेश्वरी जी has mentioned, if GST paid fully by ITC also, yes sir, even if you are paying GST fully by ITC, interest on gross has to be shown for the supplies made in the subsequent period. Kindly read the proviso to section 50, along with it the rule for the calculation of interest that has been given in section 50. So you will get that how they have divided it into case 1 and case 2. Right, Aditya ji? So should we move forward? Let's have a look on the next point. So ultimately credit can be used, but interest has to be paid on gross amount. Okay. अब सब इकट्ठा क्या क्या करना है, किस चीज का बंच बनाना है, what are the prerequisites? The prerequisites for GSTR 9 are, sir, I always get the basic work done. Still 10 to 15 GSTR 9 lies on my table every day with a bunch ready. अगर हम collection of data का काम करेंगे so we will miss up the legal issues in that. So always divide the work. It's not a one-man company now. It is a group teamwork. So what I want to highlight, हमेशा financial statements,
अगर आपकी ब्रांचेस है पार्टी की तो ब्रांच वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों, अरे जीएसटीआर 99C तो जीएसटी नंबर वाइज जानी है। सो आपको बाइफिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए, आपको प्रॉपर 26 AS की कॉपी भी होनी चाहिए। कितने सारे नोटिसेस आ रहे हैं जीएसटीआर 99C के, not GSTR, not even GSTR 99C, even service tax regime also, where the 26 AS has been the basis for issuing the notices, right? Bifurcated branch-wise financial statements are required. Income tax return copies should be there. The books of accounts, your cost in corporate records, and sir, most important, last year ka part 5, spillover effects, which we are going to discuss in a while now. So spillover effects are also very, very important. So पिछली साल की return का part 5, financial statements, part 5, in सबका GSTR 3B, credit ledger, cash ledger, make a bunch of it and then start your work. What are the points to be taken care of? Friends, if I talk about, जब हमारे कोई article आते हैं ना audit करने के लिए, इनकम टैक्स का ऑडिट, तो हम उसको अच्छी सी चेकलिस्ट भी देते हैं और बोलते हैं ये ले रेड ग्रीन ब्लू पेन, राइट, और देखो अच्छे से चेकिंग करके आना, अच्छे से टिकिंग करके आना। अब तो चलो जीएसटीआर 9C ऑडिट नहीं रहा, लेकिन जिस क्लाइंट का काम हम कर रहे हैं, जब उसको नोटिसेस आते हैं तो वी हैव टू बियर इट, इंटरेस्ट रेप्रिकॉशंस, पेनल्टी रेप्रिकॉशंस। सो दैट इज व्हाई आई से कि जब आप उसकी 9 और 9C फाइल कर रहे हैं, बी कॉशियस, गिव योरसेल्फ अ सेकंड थॉट। सर 1% टू 2% छोड़िए, हमारे अपने प्रोविजंस ओवर द टाइम इवॉल्व होते हैं। दैट इज व्हाई हम ही नहीं, पहले शायद एक चीज को कहो इस पे जीएसटी नहीं लगना, एंड द इवॉल्व्ड लॉ आज आपको लगता है नहीं इसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना चाहिए, कोई कोर्ट जजमेंट्स आ जाती है और समथिंग एल्स। So please reconsider the things when you are filing GSTR 9 and 9C. It will save your client from lots of interest and penalty issues later on. That is how you can make the value addition, right? Now coming back, 20 quick points में, this is also a checklist. The things which you need to consider, जो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, I know I am giving you 20, you will be adding much more to it. What it can be? Always prepare a reconciliation. इनकम टैक्स में कितना दिखाया और जीएसटी रिटर्न्स में कितना दिखाया, आरसीएम। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, आज a few days back I got a call from some client was asking, मैंने अपनी फर्म में लॉयर क्या, एक लिटिगेशन चल रहा है लैंड मैटर का, तो मैंने अपनी फर्म में एक एडवोकेट से ओपिनियन ली है और उसका खर्चा डालना है 1 लाख, क्या मुझे मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? यस और नो, यस और नो, क्विकली, जल्दी जल्दी टाइप किया करो। यस, अल्पेश जी सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स? You know, we wait for others to reply first sometimes. Am I right? One of the webinar which I was doing, somebody wrote in the chat box, I am not able to see the others' replies. So first make that possible, then only I will reply. All right, Ajit ji saying also yes. Also yes. Sir, those who have mentioned yes, the answer is no. जिन लोगों ने yes mention किया है, उन लोगों ने सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी एक्ट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को फॉलो किया है। Am I right, अजीत जी, जागू जी, जाजू जी? I'm sorry, I've been pronouncing the name wrongly. But friends, my dear friends, आप लोगों ने एंट्री नंबर, सीरियल नंबर 45 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इग्नोर कर दिया। 12/2017 क्या है? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। अरे बहुत आसान है, 1 गुड्स का रेट, 2 गुड्स का एग्जेम्पशन, 11 सर्विसेज का रेट, 12 सर्विसेज का एग्जेम्पशन। तो ये सर्विसेज है, 12/2017 नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 45 कहता है एनी एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन एंटिटी which is not registered business entity up to a turnover of 20 lakhs, the services of the advocate are exempt.
सो अजीत जी, जब ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गई तो एज अ रिजल्ट मुझे सेक्शन 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. प्लीज रीड द लॉ इन टोटलिटी. अच्छा, एक और चीज बताइए. एक इंडिविजुअल फॉर्म है और उसने जीटीए की सर्विस ले ली. जीटीए की सर्विस, आई हैव गिवन यू अ सिचुएशन, जब मैंने अभी बताया कि एक बिजनेस एंटिटी है और उसने लॉयर की सर्विसेज ली हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था तो सीरियल नंबर 45 में एग्जेम्पशन में कवर हो गया. दैट इज वाई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. सेकेंड इज जीटीए की सर्विस ली है इंडिविजुअल ने. नाउ टेल मी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन येस और नो? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन येस और नो? Answer is if you go by. Acha, Ridik Shah ji, great. You have mentioned no. Can I know the provision, please? On what basis you are saying no? On what basis you are saying no? Friends, GTA की सर्विसेज भी अगर मैं देखूं कंपल्सरी रिवर्स चार्ज में कवर्ड है एज पर सेक्शन 24, बट देयर इज अ सीरियल नंबर 21A of again the same notification 12/2017 which says GTA providing services to unregistered individual is exempt. So रिदिक जी, क्योंकि ये exempt हो गई ट्रांजैक्शन, इसलिए मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, अदरवाइज इट वाज रिक्वायर्ड टू गेट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. So friends, I hope you are clear about it. Always check RCM provision. डायरेक्टर पेमेंट्स पे कहाँ लगता है, फॉरेन पेमेंट्स हुई है उस पे RCM प्रोविजन चेक कर लीजिए. प्रॉपर बाइफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एज पर सेक्शन 16 और 17(5) का कोई आईटीसी जो नहीं मिलना चाहिए वो तो नहीं लिया है. 180 डे फ्रेंड्स, 180 डेज का क्राइटेरिया नाउ आफ्टर द चेंज इन 3B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, and let me tell you, GST department has started issuing the notices on 180 days. Although we give a legal reply to it without accepting the liability, GST is a weird world. If you will accept the things, if you will accept the liabilities, you have to pay it. If you fight for the same, so you can be benefited for the same. Refunds लिए हैं वो correctly लिए हुए हैं, HSN SAC के according rate. Classification is a big issue. एक्सपोर्ट्स प्रॉपरली शो की हुई है प्रॉपर. सर कई बार ही पार्टी क्या करती है, मींस फॉर अनरजिस्टर्ड फर्म्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नीडेड फॉर जीटीए एंड लीगल सर्विसेज. बाफना जी, अनरजिस्टर्ड फर्म प्लीज चेक सीरियल नंबर 45 एंड 12A. जीटीए में बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को है और लीगल सर्विसेज में बेनिफिट बिजनेस एंटिटी को है, मे बी इंडिविजुअल, मे बी पार्टनरशिप, मे बी कंपनी. यस, अगर आप सीरियल नंबर 45 और सीरियल नंबर 21A के थिंग्स को कंप्लाई करते हैं, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, वहां वर्ड्स चेक कर लीजिए, 20 लाख का टर्नओवर भी मेंशन्ड है बिजनेस एंटिटी के साथ, कि जो बिजनेस एंटिटी 20 लाख के टर्नओवर तक है, अगर आप उसकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है. अगर आप उस सीरियल नंबर को कंप्लाई नहीं करते हैं, देन एज पर सेक्शन 24 यू हैव टू गो फॉर द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. Is that point stands clarified, Bhavna ji? Okay, great, thank you. Now, all the expense, sir, कई बार क्या करते हैं, जैसे कपड़े वाले नीचे ट्रांजिट फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस लगा देते हैं, फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस लगा देते हैं. सो जो ट्रांजिट इंश्योरेंस वो चार्ज कर रहे हैं, दैट शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई होने की. अच्छा, ट्रांजिट इंश्योरेंस पे रेट क्या लगेगा, 5% की 18%, 5% or 18%? Quickly, 5% or 18% transit insurance charged in the bill? Absolutely, it is 5%. राइट वैभव जी, आदित्य जी, द रेट ऑफ द मेन प्रोडक्ट. सर इनवॉइसिंग जरूर चेक करिए, प्रॉपर की गई है. 2A का रिकंसिलेशन और कब तक पॉपअप हो रहा है, 30th नवंबर तक. जो 2A की फिगर वो इंपोर्ट करता है, दैट इज अप टू 30th नवंबर. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को कंसीडर करिए, इंटरेस्ट लायबिलिटी. सो दीज आर द क्विक समय. 42, 43 का रिवर्सल, वन ऑफ द मेन इश्यूज. 42, 43 का रिवर्सल जो है वो प्रॉपरली किया गया. और सर जब आप डिपार्टमेंटल ऑडिट भी कराने जा रहे हैं, दे आर पर्टिकुलरली आस्किंग यू कि 42, 43 का रिवर्सल हुआ है कि नहीं. एक बात बताऊं,
जब आप अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स ऑडिट भी करते हैं और जीएसटी का उसकी रिटर्न फाइलिंग या अदरवाइज भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज देखिएगा कि उसमें आपके क्लैशेस ना हो. फॉर एग्जांपल स्टॉक, आप इनकम टैक्स में लिख रहे हो नो स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड. सर, जब से जीएसटी हैज कम इनटू बीइंग, maintenance of stock records has become mandatory as per section 35. सो आप नहीं कह सकते मैं स्टॉक रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा हूं. प्लीज अप्रेज दिस इशू टू द क्लाइंट कि आफ्टर जीएसटी कमिंग इनटू बीइंग दे वर सपोज्ड टू मेक द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स आल्सो. ऑल राइट, this is a big PPT. Anyhow, aggregate turnover section 2 clause 6 के अकॉर्डिंग आपको टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पैन वाइज कंसिडर करनी है. अगर शेड्यूल 1 सप्लाईज है, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स है, ओके. सर, बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है ट्रेवल एजेंट, ये तो पेनल्टी है, लेट फी है. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत हाई पड़ती है और वेवर्स भी नहीं आते. 200 रुपीज पर डे का यू आर सपोज टू बियर द बर्डन फॉर द सेम. सो बी कॉशियस, डोंट लीव GSTR 99C फाइलिंग. All right, I was going to ask you, ट्रेवल एजेंट्स के केस में और फॉरेक्स डीलर्स के केस में, who have the clients, क्या उनका बुक से टर्नओवर मैच करता है फॉरेक्स डीलर्स का? आंसर इज नो. फॉरेक्स डीलर सेक्शन 32 में जाते हैं और सेक्शन 32 में जाके उनके अपने वैल्यूएशन के वेज हैं. वो करेंसी सेल परचेज जब करते हैं तो इनकम टैक्स में आप ग्रॉस अमाउंट्स दिखाते हैं, बट हियर ओनली द टैक्सेबल वैल्यू इज टू बी चेक्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. जैसे ट्रेवल एजेंट्स में उनकी कमीशन, दैट विल बी द एग्रीगेट टर्नओवर. सो अगर आपको कोई पर्सन रूल 32 में है, वैल्यूएशन रूल 32 फॉलो कर रहा है, फॉरेक्स डीलर है, एयर ट्रेवल एजेंट है, तो उसका जो टर्नओवर लेना है दैट हैज टू बी टेकन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 एग्रीगेट टर्नओवर. Right? So this was an important point which I highlighted here. Now I'm moving towards the form itself. Here you have a look on this. अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहती कि फॉर्म बना दो तो आप क्या बनाते? What would you have made? सर राहुल जी, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ सकती. वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. ऑलराइट, चलिए, let's stick to the topic GSTR 9. I know it is related to GSTR 9, but at the end, please. All right, चलिए. Now, friends, अगर मैं आप मुझे बताइए आप कैसे बनाते हैं? बोलते नाम वगैरह बता दो, बेसिक डिटेल, पार्टी कौन सी है, कितना आउटपुट होना है, कितना इनपुट और कितना टैक्स पे किया है. यही 3 चीजें मांगते हैं ना, आउटपुट, इनपुट और टैक्स पेबल कितना था और पे कितना किया. सारा फॉर्म तो ऐसे ही बना है GSTR 9 का. हैव अ लुक. आपने मुझसे आउटपुट मांगा था. आउटपुट इज इन पार्ट 2. पार्ट 1 में तो बेसिक डिटेल्स है, नाम कौन है एंड ऑल दैट. आउटवर्ड. पार्ट 3 में ITC. पार्ट 4 में कितना टैक्स पे किया है भाई. यही फॉर्म तो था. तो फॉर्म तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक टेबल और आ गया, पार्ट 5. क्यों? गवर्नमेंट कहती है आपको मैंने अगले साल के, अब पहले 6 मंथ्स होते थे, अब 30 नवंबर है, यानी अगले साल के अप्रैल से लेकर नवंबर तक का टाइम पीरियड दिया था. अपनी गलतियां ठीक कर लीजिए फॉर द ईयर 21-22. जो गलतियां है तो 21-22 की, बट आपने उसको करेक्ट किया है 22-23 में. अप्रैल 22 से लेकर आपने नेक्स्ट ईयर नवंबर 30 तक उसको करेक्ट किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे सेपरेट देना. ओके, इसका मतलब गवर्नमेंट आप हमसे इस फॉर्म में 21-22 की फिगर्स मांग रहे हो, डन इन द रिटर्न फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू मार्च 22. जो अप्रैल 21 से मार्च 22 की रिटर्न तक आउटपुट दिखा दिया, इनपुट दिखा दिया, टैक्स पेड दिखा दिया, टैक्स पेबल दिखा दिया, वो यहां देना. लेकिन इस साल की जो करेक्शन
अगले साल की है वो मुझे अलग से पार्ट 5 में बताना, उसका आउटपुट, उसका इनपुट और उसका टैक्स पेड। That is why ये सितंबर मैंने हाईलाइट किया, because now they have allowed up to 30th November. So this part is in itself पूरा आउटपुट, इनपुट और टैक्स पेड मांगता है। 21-22 का जो करेक्शन 22-23 में किया है। I hope you all are getting. That's it. The other part is optional and is the basic information जो अभी कुछ कुछ मैंडेटरी किया है, but otherwise और उसमें this is the entire form. अभी एक बात तो इससे क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स कि जो पार्ट 2 है, 3 है और 4 है, ये तीनों पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन जानी है वो मार्च 22 तक की रिटर्नों की ही जानी है, और जो इस साल की करेक्शन अगले साल की है वो आपको पार्ट 5 में फिल करनी है। सो दिस इज द बेस फॉर फाइलिंग GSTR 9। हैव अ लुक। टेबल नंबर 4 आउटपुट का है, टैक्सेबल आउटपुट का। टेबल नंबर 5 टैक्सेबल आउटपुट प्लस इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर आप RCM पे करते हैं। टेबल नंबर 5 इज डीलिंग विद एग्जेम्प्ट सप्लाईज। दो ही टेबल है 4 और 5 आउटपुट के। इसमें कहां तक की इंफॉर्मेशन आनी है? मार्च 22 तक की रिटर्नों की। इसका मतलब मार्च 22 तक की रिटर्नों में जो डाटा 21-22 का है, हम इंफॉर्मेशन किसकी फीड कर रहे हैं? 21-22 की। 21-22 पिछला साल नहीं आना चाहिए, पिछला साल नहीं आना चाहिए। 21-22 की इंफॉर्मेशन जो आपकी 21-22 तक की रिटर्नों में गई है वो फिगर उठा लीजिएगा। वन थिंग। सेकेंड, आपकी एडिशनल इनकम जो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने ढूंढी है, याद है अमीश जी वाला क्लाइंट जिसकी कमीशन आपने ढूंढी थी, भाई तुमने टैक्स पे नहीं किया है, दैट ऑल्सो टू बी एडेड। इसका मतलब जो मैंने मार्च तक की 3B में दिखा दिया प्लस जो आज तक कहीं नहीं दिखाया वो मुझे यहां पर शो करना है। जो दिखा दिया मार्च तक की रिटर्नों में और जो आज तक कभी नहीं दिखाया, दैट शुड कम इन टेबल 4। आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रही हूं, लेट्स डिस्कस इट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑल्सो। हैव अ लुक। अब देखना कैसे 3B जीतती है आपकी। अरे बाबा, संगीता मैम, thank you so much, but take this query a little later. Let me maintain the flow, please. All right. So 2 queries we have differed, one of Rahul ji and one of Sangeeta ji. All right, friends, have a look. Have a look. ये देखिए, ऐसे आता है हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड फाइनेंशियल ईयर 22-23। अरे ये 22-23, अरे बोला था ना 30th नवंबर तक करेक्शन करना है, बोला था ना। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। अब देखो हुआ क्या। व्हाट एन आइडियल सिचुएशन इट इज, व्हाट एन आइडियल सिचुएशन। 15, 15, 15, वाओ, सब कुछ मैच करता है। जब सब कुछ मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जल्दी से आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में जाएगी? टर्नओवर की बात कर रहे हैं अभी हम। क्विकली सारी इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में जाएगी? अरे अगले साल तो कुछ किया ही नहीं है, किसी चीज के ऊपर कुछ पेबल ही नहीं है, तो सारी इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में जाएगी? टेबल नंबर 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। You know, you are approximately 100 in number, so at least 50 answers I should expect. Giving your Sunday morning, huh? And even then not replying, that's not fair. So can I see a few more answers in the chat box? Yes, it will go to table number 4, all in table number 4. Next question. Next, अब जब ये प्रॉब्लम आई, हमने देखा ओके 10,000 एक्चुअल फिगर थी 15,000, 10,000 रुपीज में 3B में दिखा चुकी हूँ और 1 में भी 10,000 दिखाया। 5,000 का फिगर मैंने अगले साल दिखाया। फ्रेंड्स, जो अगले साल दिखाते हैं वो पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में। अब मैं आपको पार्ट 5 दिखाऊं जरा, एक मिनट। पार्ट 5 में कितने टेबल थे? 10, 11 है ना। ये देखिए 10, 11 आउटपुट के,
12 13 इनपुट के और उनका टेबल, उनका टेक्स्ट 14 में। अब अगले साल किया है ये काम, एब्सोल्युटली जाजू जी। सो ही हैज मेंशन सर टेबल 10 पार्ट 5, अच्छा मिक्स कर दिया कुछ, चलो एनी हाउ करेक्टली यू हैव रिप्लाइड। नाउ लेट मी क्लैरिफाई। 10,000 रुपीज तो उसकी साल के उसी साल दिखा दिए, टेबल नंबर 4 में जाएगा। जो अगले साल करेक्शन की है ये पार्ट 5 में जाएगी। हियर 10,000 in table 4, 5,000 in table number 10. Agree? Yes or no? Second, third case. Agreed. All right. So 15,000 books में था, 10,000, अरे ये तो अमीश जी वाला क्लाइंट है, इसने 5,000 की कमीशन नहीं दिखाई है। अब जल्दी से बताओ कहां जाएगा। 15,000 आपकी एक्चुअल एग्रीगेट टर्नओवर है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6। रुपेश जी 4 में, अजीत जी भी बोलते 4 में, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा बेसिक फंडा क्या था, जो 3B में दिखा दिया, अरे कितना दिखाया 3B में, 10,000 प्लस जो आज तक कहीं नहीं दिखाया 5,000, ये जाएगा टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 में जब ये टेबल नंबर 4 में जाएगा और 5,000 का DRC 03 भी भरना पड़ेगा। हैव अ लुक, टेबल 4 में जाएगा एंटायर 15,000 और शॉर्टफॉल का DRC 03 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट इशू, हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन। अब बुक्स में आया 15, 12 हमने क्या किया, 10,000 तो 3B में दिखा दिया, अगले साल 2,500 करेक्ट भी कर दिया और 2,500 कहीं नहीं दिखाया, 2,500 कहीं नहीं दिखाया। नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ व्हाट विल यू डू, क्विकली टेल मी। अरे भाई सीधा फंडा, 3B में जो दिखा दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट अफसाना जी, बिल्कुल ठीक। 10,000 जो 3B में दिखा दिया प्लस 2,500 जो कहीं नहीं दिखाया, ये जाएगा टेबल नंबर 4 में। एंड जो अगले साल करेक्ट किया वो जाएगा पार्ट नंबर 5 में। एब्सोल्युटली करेक्ट। टेबल नंबर 4 में 12,500 DRC, ऑफ कोर्स ये 2,500 वाला DRC भी भरना पड़ेगा जो कभी नहीं दिखाया, और टेबल नंबर 10 में जाएगा 2,500। नाउ 3B जीतेगी GSTR 1 के ऊपर। नेक्स्ट 2 केसेस आर अ एग्जाम्पल टू द सेम। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे कहा था ना 3B और 1 दोनों लेकर चलेंगे, अब क्या करेंगे। 3B में है 15 का 15 करेक्टली दिखा दिया, GSTR 1 में अगले साल दिखाया। सर हम 3B टैक्स ड्रिवन बेसिस पे चलेंगे, मैंने 21-22 का टैक्स 21-22 में ही पे किया हुआ है। Entire amount of 15,000 will go to table number 4. Value flowing from 3B. And next case, अब इसमें देखो 3B में अगले साल दिखाया है, 3B will win. अजीत जी could not understand, no effect. 3B में अगले साल दिखाया है, टेबल नंबर 4 10,000 से आएगा, टेबल नंबर 10 5,000 से आएगा। वैल्यू फ्लोइंग फ्रॉम 3B। एब्सोल्युटली करेक्ट अफसाना जी, बिल्कुल करेक्ट। So ultimately the crux of case number 5 and 6, the 3B prevails over GSTR 1. Right? Now friends, moving ahead to table number 4 के बाद हम टेबल नंबर 6 की जरा बात कर ले। अच्छा एक काम करें, टेबल नंबर 6 पे भी आते हैं। टेबल नंबर 6 हमारा इनपुट्स का टेबल है, ये फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होती है, these figures gets auto populated। यहाँ पे हमको बाइफिकेशन इन दोनों का इकट्ठा देना है, कैपिटल गुड्स का हम सेपरेटली देंगे, as was told to us earlier। फ्रेंड्स एक बार जरा टेबल 9 देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन टेबल 9 जिसमें टैक्स पेड की डिटेल्स थी। यहाँ टेबल नंबर 9 के 2 हिस्से हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टेबल नंबर 9, पेबल अलग और पेड अलग। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड 2 कलर्स, पेबल अलग और पेड अलग। पेबल ग्रे फिगर्स यू कैन चेंज, एडिटेबल है। ऑरेंज पार्ट
यू कैन नॉट चेंज, नॉन एडिटेबल है, ऑटो पॉपुलेट होते आता है। और सर 3B में कितना टैक्स पिछले साल का था, कितना टैक्स इस साल का है, वो तो भरने वाले को भी ढूंढना पड़ता है। हम भी ना जब रिटर्न भरते हैं, अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन आती है, वी फाइल द रिटर्न्स अकॉर्डिंगली एंड देन वी फॉरगेट। उसके बाद जब साल बाद 9 साल क्या 1.5 साल बाद जीएसटी या 9 भरने लगते हैं, ओहो ये फिगर कहां से ली थी, तो बेचारा ये जीएसटीएन पोर्टल कहां से ढूंढेगा। वो भी क्या करता है, जैसे फिगर इंपोर्ट करता है ना, ये ऑरेंज पार्ट में सब मिक्सचर इंपोर्ट करता है, पिछले साल के टैक्सेस जो आपने इस साल में इफेक्ट दिए हैं वो जोड़ के देता है, वो जोड़ के देता है। आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 15 minutes because the deliberation will be at the point where we will be discussing the spillover effects, the maximum thing to be achieved through this. So please be with me. This 3B का orange portion is non-editable. इसमें पिछले साल के spillover effects add हुए होंगे, लेकिन आप लोग GSTR 9 भर रहे हैं 21-22 की। आप ऑरेंज को तो चेंज नहीं कर सकते, ग्रे को तो कर सकते हो। ग्रे में लायबिलिटी 21-22 के परटेनिंग ही दिखाना। अगर इस साल की लायबिलिटी 1 लाख है और पिछले साल का इफेक्ट देकर आपने 1,03,000 टैक्स पे किया है, क्योंकि 3,000 आपने पिछले साल का किया है, यानी 20-21 का पेबल और पेड का डिफरेंस आउटपुट का स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। पेबल और पेड का डिफरेंस लास्ट ईयर का स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, जो आपकी 2021 की पार्ट 5 से मैच करना चाहिए, पार्ट 5 से मैच करना चाहिए। देन पेबल लेस इनपुट क्रेडिट, Vaibhav ji, I think so paid will not match. Absolutely, Vaibhav ji, this is the point I am highlighting. It will not match. And the difference will be the spillover. This is how I check my returns when the staff brings that to me. कि पिछले साल का कितना impact है. Have a look. I will share with you an Excel sheet also. Right? अब ये जो मैंने जो बोला ना spillover effects, let's do it with the practical example also. Let's do it with the practical example spillover effects. और देखना कैसे कैसे ये मैंने एक शीट बनाई है जिससे हम चेक्स लगा सकते हैं कि मेरा फॉर्म करेक्टली फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। सादा एक्सेल मुझे भी नहीं आता है, ऑल्दो मतलब फिर भी आई हैव ट्राइड कि हम जितने रिकैंसिलेशंस थ्रू एक्सेल कर सकते हैं, वी शुड डू दैट. At least we should have our energy more into the legal parts to check. Now have a look. Have a look on this. Vaibhav ji, your point will be clarified through this. मुझसे लोग कई बार ये क्वेश्चन प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि पिछले साल का इफेक्ट इस साल के कहां दिखाएं. My answer is कहीं नहीं दिखाना है. ऑटोमेटिकली पेबल और पेड का डिफरेंस अराइज हो जाएगा. ग्रेट वैभव जी. नाउ हैव अ लुक. जब वैभव जी रिटर्न फाइल करने लगे तो बोला 3B में कितनी फिगर है, 1,03,000 टैक्स की, आउटपुट टैक्स की. पिछले साल की रिटर्न याद है, मैंने बंच में पिछले साल का पार्ट 5 ऐड कराया था. पिछले साल का बंच उठाया और बोला हमने क्या दिखाया, पिछले साल का क्या इफेक्ट दिया. सर पिछले साल का इस बार टैक्स बढ़ाया 5,000 और पिछले साल का इस बार टैक्स कम किया 2,000. मैंने बोला अच्छा नेट इफेक्ट कितना दिया, बोलते 3,000. पिछले साल की इस बार आउटपुट टैक्स 5,000 से बढ़ाया और इसका मतलब पिछले साल का नेट इफेक्ट इस साल के टैक्स में कितना दिखेगा, 3,000. अभी हम सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं. 3,000. मुझे एक बात समझ आ गई. ओके, इसका मतलब जो तुम्हारा 1,03,000 टैक्स आ रहा है 1,21,22 का ही है और 3,000 पिछले साल का स्पिल ओवर इफेक्ट है. अग्रीड? Agreed? Okay, if you agree, put a message okay or thumbs up. चलो छोड़ो, रहने दो, इधर ही चलते हैं. हाँ, now, so 21, okay अजीत जी, चलिए. So 1 लाख और 3,000 से चेक कर रही हो, जाग रहे हैं कि सो गए हैं सारे. All right, Vaibhav ji, great. So 21, 22 and 3,000 awake. All right, चलिए. Now, अब जरा हेडिंग ध्यान से देखना. अब जरा हेडिंग ध्यान से देखना.
ये हेडिंग पर्टिकुलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है, किताबें खोली, ये तो फ्रीज्ड फिगर्स थी जो ऊपर हमने डिस्कस कर ली, 21, 22 बिल्कुल करेक्टली फाइल किया हुआ था। वैभव जी वाज सो हैप्पी, बोलते यार क्या बात है, 1 लाख ही आउटपुट था, 1 लाख ही दिखाया है, 1 लाख ही आउटपुट था, 1 लाख ही दिखाया है, हम रिटर्न 21, 22 की भर रहे हैं, टेबल 4 में पूरा 1 लाख आएगा। याद है मैंने क्या कहा था वैभव जी, जो इस साल का पेबल होगा टेबल 9 में वही लेकर जाना, हैंड से फिगर चेंज करनी पड़ती है। 1 लाख इस साल का पेबल है। 3B ऑटोमेटिकली कितना इंपोर्ट कर रही है, देखो सारे केसेस में 1,03,000, वो कहेगा 1,03,000 है। अरे ऑफिसर को बोलो सर ये पिछले साल का इफेक्ट है ना, पिछले साल की रिटर्न उठाइए, उसका टेबल 10 माइनस टेबल 11 करिए, देखिए 3,000। हमने कहीं फिगर नहीं दिखाई, पिछले साल की फिगर ऑटोमेटिकली पेबल माइनस पेड में रिफ्लेक्ट करती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अब बुक्स जब वैभव जी ने उठाई तो आउटपुट दिखा 1,08,000। ओहो, अरे ये 8,000 के ऊपर पार्टी ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है? किया है सर। अगले साल करेक्ट किया है? नहीं किया है सर। 8,000 वो कमीशन है अमीश जी वाले क्लाइंट की, जो उसके ऊपर उसने टैक्स पे ही नहीं किया। दो केस हो सकते हैं, लायबिलिटी तो दोनों में 1,08,000 दिखी, एक में अगले साल करेक्शन कर दी, एक में अगले साल करेक्शन नहीं की हुई है। अच्छा, टेबल 4 से वैल्यू पहले केस में कहां से फ्लो करेगी? जो 3B में दिखाया और जो अगले साल करेक्ट किया वो टेबल 10 में ले जाओ। अरे अगले साल कितना करेक्ट किया है? 8,000, ये तो पार्ट 5 में ले जाओ, अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल में। जो इस साल की 3B में दिखा दिया 1 लाख, मैच कर गई ना वैभव जी, 1 लाख प्लस 8,000 पूरा दिखा चुके, कोई डीआरसी नहीं जाना, कोई डीआरसी नहीं जाना। हाँ, आपने कहा था अब देखो टेबल 9 में पेबल कहां से उठाना है? इस साल का 1 लाख, ये 8,000 का। पार्ट 5 का टैक्स इंपैक्ट टेबल 14 में जाता है, उसी के अपने पार्ट 5 में, याद है ना, उसके 10, 11, 11, 12, 13, 14 नंबर था। ये 8,000 तो अलग से दिखा दिया, पेड है। अब GSTR 9 का टेबल नंबर 9 का पेबल चेंज होगा और पिछले साल का इफेक्ट यहां दिखेगा, 3,000 एक्सेस पेड, पिछली बार की रिटर्न से चेक कर लीजिए। अब एक वैभव जी ने जब रिटर्न दिया, कहते 8,000 पे तो टैक्स पे ही नहीं किया। ओहो, इसका तो पहले DRC 03 भरना पड़ेगा। अब हमारा रूल क्या था? जो 3B में दिखा दिया प्लस जो कहीं नहीं दिखाया वो टेबल नंबर 4 में आता था। ये रहा आपके सामने, इसमें तो पार्ट 5 यूज ही नहीं होना, मैंने अगले साल कोई करेक्शन की ही नहीं है, अगले साल मैंने कोई करेक्शन की ही नहीं है, सो पार्ट 5 यूज ही नहीं होगा। हाँ, जो कहीं नहीं दिखाया 8,000 DRC जाएगा। अब वैभव जी बोलते हैं अब कहां गया आपका पेबल माइनस पेड? है ना, इस बार का पेबल 8,000, पिछली बार का एक्सेस पेड 3,000। सर देख लो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। करंट ईयर पेबल एडजस्टेड माइनस लास्ट ईयर 3,000, 5,000 का इंपैक्ट दिख रहा है। अब जब बुक्स उठाई वैभव जी ने तो आउटपुट लायबिलिटी दिखी 92,000। अरे ये तो कम हो गई है। हाँ, पार्टी ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है क्या? हाँ जी सर, पर सर डोंट वरी, पार्टी ने अगले साल ठीक कर दिया। अरे अगले साल ठीक कर दिया तो टेबल 11 यूज कर लेना, और अगर अगले साल ठीक नहीं किया, पार्टी ने 92 की बजाय 1 लाख ही दिखाया हुआ था, आपका रिफंड केस बनेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हम GSTR 9 के बेसिस पे रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं? यस, 1 2 3 4 5, दिस केस नंबर 5 is the example where you can apply for the refund. 92,000 liability थी, 1 लाख पे टैक्स पे किया हुआ था, आप कितना दिखाएंगे? 92। अब देखना वैभव जी, मैं पेबल 9 का एक्चुअल पेबल दिखा रही हूं, टेबल नंबर 9 के पेबल में 92। अब देखिए आपका यही पेबल और पेड बताएगा 8,000 इस बार का एक्सेस, 3,000 पिछली बार का एक्सेस, टोटल 11,000। पेबल और पेड आउटपुट में पिछले साल का डिफरेंस हमेशा टेबल 9 में दिखता है। अब जब आई वॉज मेकिंग दिस,
माई स्टाफ सेज मैडम ये सारी प्रॉब्लम हमें इकट्ठी खिचड़ी मिलती है। वैभव जी बोलते बस करो, समझ गया हूँ, बार बार मेरा ही नाम लेते जा रहे हैं। हाँ, सामने आप ही का दिख रहा था। सो व्हाट आई दे सेड मैम हमें कुछ ऐसा भी दिखता है, कुछ तो करेक्ट कर दिया, कुछ करेक्ट नहीं किया, कुछ एक्सेस दिखा दिया, कुछ शॉर्ट दिखा दिया, हमें एक कॉम्बिनेशन केस बना के दो। लिटरली दिस हैपेंड, यू नो, माय स्टाफ वाज लाइक, वो जब पहले साल रिटर्न नहीं भर रहे थे, दे वर लाइक कि क्या कर रहे हैं हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन मिलता है, पता ही नहीं लगता कौन सा एक्सेस दिखाया। मैंने कहा वेट, लेट्स मेक अ कॉम्बिनेशन केस। व्हाट, किताबें खोली, एक्चुअल लायबिलिटी दिख गई 1,10,000। क्यों दिखी मैम? 7,000 3,000 अगले साल ठीक, अच्छा 1 लाख तो पता ही है जी, हमने 1 लाख तो करेक्टली 3B में दिखाया हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्च तक की, ओके। 7 और 3,000 अगले साल मानी 22-23 में करेक्ट किया। मैंने कहा रुक जा, पहले जो 22-23 में करेक्ट किया मुझे उसको तो पार्ट 5 में लेके जाने दे। ये नेट इफेक्ट 4,000 और ये नेट इफेक्ट टेबल 14 में दिख जाएगा। मैंने कहा एक बात समझ आई, 1 लाख पे टैक्स तो 3B में ही दे दिया था, 4,000 तुमने अगले साल करा दिया, अभी भी 6,000 बच गया। कहता मैम 6,000 पे तो वो कमीशन थी अमीश जी वाले क्लाइंट की, वो कभी पे ही नहीं की। तो मैंने कहा इसका तो DRC 03 आएगा। अब बेसिक रूल लगाओ, जो 3B में दिखा दिया 1 लाख प्लस जिसके ऊपर आज तक टैक्स ही नहीं पे किया 6,000, टेबल नंबर 4 में। अब टेबल नंबर 9 का पेबल, इस बार वैभव जी का नाम लेना, टेबल नंबर 9 का पेबल वही आएगा जो टेबल नंबर 4 में पेबल होगा, 1,06,000। अब बोलते डिफरेंस का गया, अरे ठीक है ना, 6,000 इस साल का पेबल, 3,000 पिछली बार का एक्सेस, नेट इफेक्ट उल्टा हो गया 3,000 पेबल। मैम DRC कितने का भरना है? 6,000 का भरना है, एंटायर रिटर्न सॉर्टेड आउट। सर एक एक कॉलम वेरीफाइबल है, चेक कर सकते हो, 9 और 4 का पेबल मैच करना चाहिए। टेबल 9 का पेबल और टेबल 9 का पेड का डिफरेंस पिछले साल का स्पिल ओवर इफेक्ट्स होगा प्लस करंट ईयर का पेबल और रिफंड होगा। चेक सम फॉर्मूला, सर रिकंसिलेशन है, कुछ नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं, पिछले साल के टेबल माइनस कर रहे हैं, उल्टे कर रहे हैं और इस बार के ऐड कर रहे हैं, अगर टर्नओवर मिलानी है तो। अब ये सब तो आपने हमें बता दी, क्योंकि यहाँ तो आपने ये छोटी सी फिगर्स हमें दे दी थी, सो वी कुड अंडरस्टूड। ऐसे ही सेम इनपुट में भी है, लाइकवाइज इट इज एन इनपुट। इनपुट में भी फिगर 3B की फ्रीज्ड मिलती है। पिछले साल का पहले आपने टेबल 10 और 11 उठाया था, अब मैंने टेबल नंबर 12 और 13 उठाया, नेट इफेक्ट आया 2,000। वही केसेस बनेंगे, आउटपुट इनपुट सेम मिला, इनपुट ज्यादा मिला, इनपुट कम मिला और एक कॉम्बिनेशन केस मिला। तो क्या करूं सर, जैसे आउटपुट का डिफरेंस पेबल और पेड में दिखता था, इनपुट का डिफरेंस कॉलम नंबर 6J में दिखता है, पिछले साल का स्पिल ओवर इफेक्ट्स। ये देखिए हर केस में, हर केस में 6J कॉलम। कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले साल की रिवर्सल इस साल की है, कहां दिखाऊं? फ्रेंड्स रिवर्सल टेबल नंबर 7 में आते हैं, पिछले साल के रिवर्सल इस साल में कहीं नहीं दिखाना, छोड़ दीजिए, टेबल 7 में नहीं दिखाने हैं। कुछ लोग जो बहुत 990 भर चुके हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब वो टेबल 8 से कंपैरिजन करता है, मैं आप लोगों की क्वेरीज भी एड्रेस कर रही हूँ, तो वो ग्रॉस फिगर उठाता है और टेबल 7 में किया हुआ रिवर्सल नहीं उठाता। वो कहते हैं आपका ऑनलाइन आ रहा है 80 रुपए, हमने भी किया 80, 100 और 20, 100 टेबल 6 में, 20 टेबल 7 में, नेट 80 है, बट वो 80 को कंपेयर करता है 100 से। सर फॉर्म में एरर है, फॉर्म में एरर है, राइट? अब ये देखिए इनपुट में दिक्कत क्या है, 6A कॉलम एक ऑटो पॉपुलेटेड कॉलम है, उसने हमेशा 1,02,000 दिखाना है। आपको 6B में बुक्स की फिगर दिखानी, जो एक्चुअल है दिखानी है। लेट द इंस्टीट्यूट का मैनुअल बोलता है 6J should ideally be 0. I also say the same. 6J should be 0. Only the impact is coming of spillover effect. इस साल का इनपुट अगर 1 लाख था, वो मैंने 1 लाख ही दिखाया है, जो मैंने 3B में दिखाया।
सिर्फ 2000 का डिफरेंस स्पिल ओवर इफेक्ट्स का आ रहा है, विच इज रिफ्लेक्टिंग इन कॉलम 6J. So these are the figures. 6B, yes, 6B should be as per 3B. 6B should be as per 3B. That is why ideally the difference in 6J. Friends, GSTR 9 जो है वो बुक्स के साथ रिकंसिलेशन नहीं होता है. GSTR 9 आपका रिकंसिलेशन होता है of the returns filed earlier and now. So that is why, whose question was it? Vaibhav ji. So that is why it is as per the, let me open the chat box. It is as per the, भूल गई, चलो chat box खोलते खोलते, yes, it is as per 3B. I am reconfirming you, Vaibhav ji, it is as per 3B. All right. What if ITC is taken more? Sanjay Maurya ji, केस नंबर पर आइए, ये वाला केस नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 नहीं 5 नंबर. 92,000 इनपुट मिला था, आपने 3B में कितना लिया था? अभी जो वैभव जी ने क्वेश्चन पूछा, भाई मैंने तो 1 लाख लिया था, मैं 1 लाख ही दिखाऊंगी, 8,000 का 1 लाख दिखाऊंगी. एज अ रिजल्ट मेरा डिफरेंस आएगा 2,000. अब आपका ये जो डिफरेंस है ना, जो आपने 8,000 एक्सेस लिया हुआ है, उसके लिए आपको DRC 03 भरना पड़ेगा. संजय जी, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, यू गॉट इट राइटली. 8,000 के लिए आपको DRC आंसर करेक्टली, दैट यू हैव टू पे द DRC 03 फॉर द एक्सेस ITC टेकन मोर देन द बुक्स. लेकिन वैभव जी, आपका वाला पॉइंट भी रिकन्फर्म हो रहा है. मेरी बुक्स में ITC 92 था, मैंने 6B कॉलम में 1 लाख दिखाया था. संजय मौर्य जी, you also asking the same question. What should be in 6B? It is 1 lakh. It is 1 lakh. All right, great. Okay जी, okay. चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाती हूँ. Let me open that Excel sheet too. Oh hi, आज तो मैंने कॉपी नहीं की है. Wait for a while. Let me copy the Excel sheet first. And we missed 2 queries आज हमने pending छोड़ी थी, that we will be taking. Let me open the Excel sheet for you. GSTR 99C, and here we have 21-22 का Excel sheet. Okay, I just shared the screen. New share. Wait, it has not opened yet. It has opened. New share of this Excel sheet. Share. Okay, can you see the Excel sheet, my dear friends? I think so, you can. Yes. All right. Okay, great. This is the Excel sheet. It will not give you what you have to do, but it will give you an insight कि client का lagging कहाँ पर है, कौन सी figures mismatch कर रही है. Reconciliation, ये जो मैंने आपको spillover effect अलग कराया ना, 6 minus 4 2,000 या 5 minus 2 3,000, ये सर ऑटोमेटिकली निकल आएगा थ्रू दिस शीट. कैसे? इतना पोर्शन जो है ये सेल साइड है, इतना पोर्शन आपकी इनपुट की साइड है. यहाँ पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं. नाउ यू कैन सी, देखो सेल में 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, 3B, 1 और बुक्स. मैंने तीनों दिखा दिए. 3 कलर्स हैं. आई लव colorings, you know, so I always even if I do some case वाला काम ना, even then I prepare the Excel sheets with the colorful, वो सामने दिख जाता है. So here you can see 3B, GSTR 1 and books. आप दिक्कत क्या है, बुक्स की फिगर उसी साल की मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. GSTR 1 की फिगर उसी साल की मिल जाती है. प्रॉब्लम तो 3B है, जो एक खिचड़ी है, इज अ मिक्सचर. माइनस कर दीजिए यहीं पर. अरे मैं कंपेयर नहीं कर सकती 3B को बुक्स के साथ, क्योंकि 3B में तो फिगर्स मिक्स होके आती है. स्पिल ओवर इफेक्ट्स अलग कर दीजिए. यहां मैंने कॉलम बना दिया, एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. पिछले साल की रिटर्न उठाइए, टेबल 10 और 11 उठाइए, पिछले साल का टेबल 10 माइनस कर दीजिए, टेबल 11 ऐड कर दीजिए. फॉर्मूला लगा है, सिर्फ देख के फिगर डालेंगे. अब यहाँ जो नेट फिगर निकलेगी, हट गए उसमें पिछले साल.
के इफेक्ट्स। अब इसको आराम से कंपेयर करिए बुक्स के साथ, डिफरेंस निकलेगा। ये भी पता लगेगा सर, इस शीट में ये भी पता लगेगा कि रेट की वजह से क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई अलग से दिखाई हुई। हम कंफर्म कर पाएंगे, अच्छा ये मेरा सेल में डिफरेंस आ रहा है, टैक्स में आ नहीं रहा, अरे एग्जेम्प्ट सप्लाई की वजह से है ना। आई का सी में पे हो गया या एस में पे हो गया, वो भी ये चार्ट आपको बताएगा, क्योंकि ये इंटर हेड भी बना है, आई सी एंड एस एंड टोटल। सो अब ये बताएगा इतना डिफरेंस था, फिर मैं डालूंगी, अच्छा मैंने अगले साल में करेक्शन कर दी है 22 में, 22 के बाद पोस्ट मार्च 22, वो फिगर मैं यहां डाल दूंगी, और जिसकी करेक्शन नहीं की है वो यहां डाल दूंगी। निखिल जी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था, शेयर द शीट का मैसेज पहला रिप्लाई आया आपका, डोंट वरी, दिस शीट एंड द पीपीटी बोथ विल बी शेयर्ड, ऑलराइट। एनीहाउ, so this sheet will give you an insight कि आपका कितना, वही जो हम 8000 निकाल रहे थे and all that can be taken care through this sheet, it will become handy, और आप वो वहां पे चेक कर सकते हो पेबल और पेड। इसके अलावा लाइकवाइज इनपुट में भी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 3B और बुक्स का, रिवर्सल भी, इसमें मैं एक रिवर्सल का कॉलम भी ऐड करती होती हूँ जब मैं बनाती हूँ कि मैंने कितना रिवर्सल किया था, यहां पे भी डिफरेंस निकल आएगा। टेबल नंबर 12 और 13 पिछले साल का यूज होगा, यू विल गेट एन इनसाइट, एंड आई ऑलवेज चेक थ्रू बैलेंस मैचिंग। 21, 22 ओपनिंग बैलेंस एज पर पोर्टल एंड बुक्स, क्लोजिंग बैलेंस, ये जो डिफरेंस होगा ना क्लोजिंग बैलेंस का एज पर पोर्टल एंड बुक्स, वो मेरी इस शीट के आउटपुट माइनस इनपुट के डिफरेंस से मैच कर जाएगा। सो दीज आर द होलसम चेक्स। अब तो मेरा स्टाफ ही इतना सीख चुका है कि वो ये सारे चेक्स लगा के ही मुझे देते हैं कि मैम यहाँ पे ये फर्क आ रहा है, आप चेक कर लीजिए क्या डिफरेंस है, आप इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस कर लीजिए कि ये क्यों आ रहा है। फ्रेंड्स मैं वो भी आपसे शेयर कर दूं, लेट मी शेयर दिस पावर पॉइंट का। इसमें मैंने 9C का इम्पैक्ट भी दिया है, सिर्फ टेबल 12 में हम बताते हैं पिछले साल के क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स है और वो मैच कर जाते हैं, नॉट मच एन इशू। 9C में अब हम कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल मैंने वो क्वालिफिकेशन कट नहीं की है, ये अभी भी आपको ऑप्शनल ही है, आपको नहीं देना है इसका बाइफिकेशन। मैंने वो क्वालिफिकेशंस कट नहीं की है बिकॉज ये हमें एक आइडिया देती है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी और कंसिडर करनी है और क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। सो दैट इज आई हैव केप्ट इट हियर। कई बार हमें टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, फॉर दैट आई हैव मेड दिस स्लाइड सर्टेन सॉल्यूशंस। And with this, I end up my presentation. Thank you so much for being patient listening. And I know I have been teasing you through the chat box कि आपको revert करना है, but thank you so much for being there. Over to you, sir. Can you reply for the queries? Yes, sir. You please unmute both the participants जिनका query pending है, quickly. पार्टिसिपेंट्स जिनका भी वो 2 क्वेरीज थी, एक संगीता मैम की थी और एक राहुल जी की थी, आई गेस। Rahul. I think I will repeat the query. Yeah, please. Sangeeta ma'am query is the tax-free poha churma. Interstate purchase is a tax payable on. Sir, दोबारा बोलिएगा please say that again. पोहा चूरमा टैक्स फ्री है। Interstate purchase is tax payable on RCM basis. No. Tax interstate. Sir, she needs to unmute herself to correctly answer the question. Yeah, if she question is not complete properly. She's unmute now. Yeah, please. Sangeeta ma'am, go ahead. Then please go ahead with your query. संगीता मैडम। संजय जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं मीनवाइल दे रही हूँ। सर, आपका केस भी सेक्शन रूल 32 में कवर्ड है। इस केस में मार्जिन मेथड में अगर आप जाएंगे तो टर्नओवर बुक से रिकंसाइल नहीं होता है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हेन आई डिस्कस सेक्शन 2 क्लॉज 6 टर्नओवर।
Anand ji, Manish ji, don't worry. Everything will be shared through the platform of the organizers. Definitely. They are very kind, you know. And so do I. So don't worry, we will share. I think the queries are complete now. Yeah, Sangeeta ma'am, I just tried to read it. Churma tax-free OMS purchases is taxable, tax payable on transport charges or RCM basis. अरे बाबा, अभी भी कुछ पूरा समझ नहीं आया मुझे. चूरमा टैक्स फ्री, अच्छा चूरमा टैक्स फ्री है. OMS purchases, I'm very poor at the forms, is Uh, payable on transport Achal charges. ma'am, your Yes. number is already there in the presentation. I'll ask her to directly call you, and you can she can discuss it with you offline if that's fine. Yes, मुझे दो चीजें मैं बता दूं. आउटपुट ऑफ गुड्स एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है, उससे आरसीएम की लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट नहीं है. यू हैव टू सेपरेटली चेक नोटिफिकेशन 12/2017 कि उसमें उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट किया गया है कि नहीं किया गया है. संगीता मैम, इट्स विद रेलेवेंस टू योर क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर आपका प्रोडक्ट टैक्स फ्री है तो जरूरी नहीं है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी टैक्स फ्री हो. राइट अब जैसे राइस कई बार टैक्सेबल होते हैं और टैक्स फ्री हो सकते हैं, बट उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एग्जेम्प्ट रहता है. Rahul ji, I am a partnership firm engaged in bank recovery business and getting commission from bank. I am liable for RCM, that is bank pay GST on my behalf. For 21-22 my commission from bank is 2 crore. सर अगर आपकी कमीशन आरसीएम के लिए लायबल है, लाइक फॉर एडवोकेट्स, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, क्योंकि बैंक पेज द जीएसटी. आई एम लायबल फॉर आरसीएम, आई एम लायबल फॉर आरसीएम दैट. no सर worries. आप एक बैंक रिकवरी बिजनेस में है तो आपको इनकम बैंक से आ रही है, बट you are saying that bank pays GST on my behalf, so आपको GST में रजिस्टर ही नहीं होने की रिक्वायरमेंट थी एज पर सेक्शन 23, और आपको GST 9 भी नहीं भरना है. राइट सर? You are not able to download 8A from GST website from 1st December. Sir, kindly raise the query on the portal online. If you are not able to do so, they will activate the same. 3 days they take to do so. तो 3 दिन में वो कर देते हैं. Hence, we are not getting the correct figures of GSTR 2A. Should we still upload? If you are filing GSTR 9C along with GSTR 9, although option legally has been withdrawn कि आप PDF लगा सकते हैं, but still आप उसको बट आपके पास तो फिगर्स ही करेक्टली डाउनलोड नहीं हो रही है. फर्स्ट आई सजेस्ट यू वेट फॉर 3 days 4 days, रेज द क्वेरी ऑनलाइन, so that you can proceed with the same. अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आप एक जो आपके पास करेक्ट फिगर्स है उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ अटैच कर दीजिएगा. राइट सर? प्लेजर. So sir, can I take the leave now? Yeah, right. Thank you, CA Achal Kapoorji, for making houseful Zoom meeting on Sunday morning and making such effort to take best and the effective practical examples to decoding GSTR 9 and 9C form in such a simple way. I express sincere gratitude towards you and coordinator of program CA Amish Sangoiji and all the participants. Now I request to our past convener, CA Aditya Maishwari ji, to give a formal vote of thanks to our today's speaker, CA Achal Kapoor ji. Yeah. Thanks, Jitendra, for giving me opportunity to present a very hearty. Aditya, your voice is not proper. Hello. Am I Yeah, audible? voice is not proper. It is coming now. Yeah, but very low. Now is it okay? Yeah, you can. Yeah. Thanks, Jitendra. I think there's a network issue on my end, so Okay. the video is streaming. There's an issue. So thanks, Jitendra, for giving me opportunity to give a very hearty vote of thanks to a well deserved to the speaker, Achal Kapoor ji from Chandigarh. She came out today on a very Sunday morning and in a nice breezy morning at her place, and so thank you for taking out time and guiding us, and she very diligently explained all the 9C new changes, what are the updates, and from where you can get the figures, from where can we get the figures, and also resolve the queries of the participants.
And also thank the participants for coming out in large number on a Sunday morning and attending an important lecture seminar on this. And thanks the organizers to organize such an event at the appropriate time, because as the due dates are approaching, and now all the tables are also on are live. So thank you everyone. Thanks. Back to Jitendra. There is an announcement for the next this meeting. Members, please note that the next physical meeting we are planning a panel discussion on 11th of December on the topic Code of Conduct and Ethics. Detail and links for the registration will be posted on WhatsApp group on the due course. Thank you. Thank you, Thank you so Achal much, ji. Jitendra ji. Thank you so much. I Thank you. take the Now we are